Hello students, due to home isolation I have no blackboard, so this is the only way to reach you. So today we will continue our topic and we will discuss the method of determination of molar masses of polymers by the sedimentation velocity method. So this is the material projected in front of you. So for this imagine or consider a polymer solution being spun in a centrifuge tube under the influence of a very strong gravitational field. आपको इमेजिन करना है कि एक सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में पॉलीमर सॉल्यूशन रखा हुआ है जिसको स्पिन किया जा रहा है या स्पिनिंग के दौरान वो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड के अंतर्गत है. सो द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द सॉल्यूट पार्टिकल ऑफ मास will be m omega square r, where omega is the angular velocity of the rotor in radians per second and r is the distance of particle from the center of rotation. So the centrifugal force you have learned earlier in school or earlier classes, so it will be equal to m omega r, and simultaneously the particle is also subjected to a buoyant force in addition to the centrifugal force. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ साथ जो पार्टिकल्स हैं वो एक प्रकार के और भी फोर्स का अनुभव करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, जो कि कहलाता है buoyant force. So you can understand the buoyant force as इफ़ एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं एयर में, तो उसका जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसकी वेट को हम कंसिडर करते हैं, वेट इक्वल टू एम जी, वेयर जी इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स, एम इज़ द मास ऑफ द पार्टिकल. लेकिन अगर उसी को हम एयर की जगह किसी लिक्विड में या सॉल्वेंट में डिप करके रखते हैं, तो उसके अंडर, उसके नीचे, ऑब्जेक्ट के नीचे जो लिक्विड होगा वो लिक्विड उस पर नीचे से फोर्स अप्लाई करेगा. सो इन दिस वे buoyant force is opposite to the centrifugal force. So the resultant force will be equal to centrifugal force minus buoyant force. That will be m omega r minus ms omega square r, where ms is the mass of the displaced solvent. Means solvent कितना उस पार्टिकल के कारण डिस्प्लेस होता है उसकी मास है. इफ rho is the density of the solvent and v the volume of the particle, then ms will be v into rho. So this is the simplest consideration of density, mass and volume, so you can understand. However, the measurement of v is extremely difficult. If you can imagine, v is the volume of solvent displaced by a single particle of solute or polymer. So it is naturally very difficult or extremely difficult to measure the volume. Hence it is customary to define a quantity v bar, that is the partial specific volume, and it is the increase in volume when 1 gram of a dry polymer solute is dissolved in a very large volume of the solvent. सॉल्वेंट के बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में जब 1 ग्राम सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया जाता है तो उसमें होने वाली वॉल्यूम में इंक्रीज़ को कहा जाता है partial specific volume. So you can understand it as partial specific volume, that is denoted by V bar. This is V bar. Then obviously consider again the quantity ms in second term of the above expression. Ms will be equal to V bar into rho. So the quantity m into v bar
will represent the increase in volume obtained after adding a particle of mass m to the solvent. तो इसका कंसिडरेशन अगर हम ऐसा लेते हैं कि एक पार्टिकल m मास का सॉल्वेंट में अगर ऐड किया जाता है तो कितना उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वो m इंटू वी बार के बराबर होगा. इसी के बेस पर ये कंक्लूड किया जाता है कि m इंटू वी बार विल बी इक्वल टू v, that is the volume of solvent displaced by a single molecule of solute. Then resultant force will be equal to m omega r minus m omega will be equal to m omega square r minus m omega square r into v bar into rho. So that will be equal to m omega square r, कॉमन निकाल लिया इसको तो ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस वी बार इंटू रो. सो दिस इज़ द रिजल्टेंट फोर्स जो कि पार्टिकल महसूस कर रहा है. ये रिजल्टेंट फोर्स सेंट्रीफ्यूगली कहना चाहिए, इसको गैस कर रहा है. दिस रिजल्टेंट फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन विल काज द पार्टिकल टू एक्सीलरेट. इसके कारण पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती जाती है, एक्सीलरेट करता है उसको. एक्सीलरेशन इन दिस केस विल नॉट लास्ट लॉन्ग सिंस द मीडियम एक्सर्ट्स ए फ्रिक्शनल फोर्स ऑन इट which is proportional to the sedimentation velocity dr by dt. अब इसमें क्या है, इसके साथ साथ जो सॉल्वेंट नीचे है उस सॉल्वेंट का फ्रिक्शनल फोर्स भी काम करेगा. सॉल्वेंट की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी जिसमें पार्टिकल को सॉल्यूशन बनाया गया है, सॉल्यूट को घोला गया है, तो उसी में उसमें प्रॉपर्टीज़ तो बहुत सी होती हैं. एक प्रॉपर्टी फ्रिक्शनल फोर्स, जो सॉल्वेंट और पार्टिकल के बीच फ्रिक्शन जो होगा उससे क्रिएट होगा फ्रिक्शनल फोर्स, और उसको बताया गया है फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू एफ इंटू डी आर बाई डी टी. तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये किसके बराबर होता है, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट एंड मल्टीप्लाइड बाई सेडिमेंटेशन वेलोसिटी डी आर बाई डी टी. ये देख रहे हैं आप, तो ये एक एक्सप्रेशन क्रिएट करता है. अब जो फ्रिक्शनल फोर्स है इट इज़ अपोजिट टू रिजल्टेंट फोर्स, ये उसको अपोज करता है, उसके मोमेंट को, फ्रिक्शन जो है. तो इसलिए दोनों फोर्स एक स्टडी स्टेट आती है. व्हेन द स्टडी स्टेट इज रीच्ड वी हैव बोथ द इक्वेशंस 38 एंड 39 एज यू सी इक्वल हो जाते हैं. इनके मान किस किस के, रिजल्टेंट फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, इन दोनों फोर्सेस के मान बराबर हो जाते हैं. सो वी राइट एज एफ इंटू डी आर बाई डी टी इक्वल टू एम ओमेगा आर इंटू 1 माइनस वी बार रो. इसके बाद आप देखेंगे इस इक्वेशन को, इफ़ वी रीअरेंज दिस इक्वेशन, सो ए न्यू कांस्टेंट डिनोटेड बाय एस, दैट इज सेडिमेंटेशन कांस्टेंट. सेडिमेंटेशन कांस्टेंट है, इट इज़ इक्वल टू एस इक्वल टू सेडिमेंटेशन वेलोसिटी इज टू सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन. सो हियर एस इक्वल टू डी आर बाई डी टी divided by omega square r, and it is achieved from the rearrangement of the above expression. We rearrange it, so we get omega square r to left side in denominator and f towards right side denominator. So finally s equal to this expression. Now after this expression we can write is equal to m by na into 1 minus v bar rho by f, where m is the molar mass of the polymer and na the Avogadro number. So m will be equal to capital M by na, as you know earlier classes में आपने पढ़ा है, ये लिखा है जो Avogadro number. The quantity S is called sedimentation coefficient. It is the sedimentation rate for a unit centrifugal acceleration.
जैसे कॉमनली कोफिशिएंट डिफाइन किए जाते हैं उसी तरह इसको भी डिफाइन किया गया है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इज दैट सेडिमेंटेशन वेलोसिटी और रेट विच क्रिएट्स यूनिट एक्सेलरेशन, सो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन फॉर ए गिवन मॉलिक्यूलर स्पीशीज इन ए गिवन सॉल्वेंट। अगर एक स्पेसिफिक सॉल्यूट को स्पेसिफिक एक ही सॉल्वेंट के लिए एक ही टेम्परेचर पर यूज़ किया जाए तो S उसके लिए कांस्टेंट होता है, और इसकी यूनिट जो होती है स्वेडबर्ग होती है यूनिट, जो कि एक स्वीडिश केमिस्ट टी स्वेडबर्ग के नाम पर है, जिसने इस पर वर्क किया था और उसको 1926 में नोबेल प्राइज़ इस पर वर्क पर